Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Stay healthy and safe at your home. Welcome to your e-learning classes of business studies. This one is your lecture 13. From my previous two lectures, I have started your chapter 3, that is private, public and global enterprises. In my previous lectures, I have explained you forms or types of public sector enterprises. Public sector enterprises are divided into three different forms. Number one is departmental undertaking, that is the oldest form of public sector enterprise in which there is total control of government. It is run by one of the ministry or department of government. Now, for example, railway, defense, post and telegraph, broadcasting, telephone services, etc. Number two was public or corporation or statutory corporation. I have explained you this in my last lecture. A statutory corporation is a body corporate formed by a special act of parliament. All those corporation which is formed by the special act of parliament and its power, objective and limitations are also decided by this act of legislature only, is known as public corporation or statutory corporation. Examples are Indian Indian Airlines, Air India, State Bank of India, Life Insurance Corporation of India, LIC, Food Corporation of India, Natural Gas Corporation. These are the examples of statutory corporation or public corporation. I hope you understand all these things from my previous lecture. Now come to today's topic, that is the third part of this public sector enterprises, government companies. Government companies means any company in which at least 51% of the paid up share capital is held by the central or state government or partially by central or state government. गवर्नमेंट कंपनी बेटा वो कंपनीज हैं विच वॉज इस्टेब्लिश अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956. किसके थ्रू इस्टेब्लिश हुई है? इट इस्टेब्लिश अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 एंड इट इज़ रजिस्टर्ड एंड गवर्नड बाय द provision of Indian Companies Act. According to the Indian Companies Act 1956, a government company means any company in which not less than 51% of the paid up capital is held by the central or state government. तो गवर्नमेंट कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिसमें 51% का पेड अप कैपिटल सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू इन्वेस्ट होता है एंड बाकी 49% इज़ इन द हैंड ऑफ पब्लिक. ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पार्शली कंट्रोल करते हैं या फुली कंट्रोल करते हैं. इट इज़ द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. फॉर एग्जांपल, द शेयर्स ऑफ दिस कंपनी आर परचेज इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और इस कंपनी के जो भी शेयर्स परचेज होते हैं इट इज़ बाय द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सिंस द गवर्नमेंट इज़ द मेजर शेयर होल्डर and exercise control over the management of these companies, they are known as government company. क्योंकि देखो 100% शेयर में 51% शेयर जो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट इज़ द मेजर शेयर होल्डर, तो गवर्नमेंट ही गवर्न कर रही है इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसलिए इस कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी बोला जाता है. फॉर एग्जांपल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये सबसे बड़ा एग्जांपल है बेटा. BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इज़ अ गवर्नमेंट कंपनी. इन दिस 51% पेड अप कैपिटल इज़ होल्ड बाय द गवर्नमेंट. नंबर टू, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ये सब एग्जांपल्स हैं आपकी गवर्नमेंट कंपनी का. इन ऑल दीज कंपनीज द डिसीजंस आर टेकन, द मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय गवर्नमेंट ऑल्सो, गवर्नमेंट, एंड देयर आर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स who is appointed by government to take the major decisions over there. In this, major share capital is in the hand of government, means 51% share government के पास है और 49% share public के पास है. Now see the features of government company. It is organized. It is an organization created by the Indian Companies Act 1956. नंबर वन फीचर है गवर्नमेंट कंपनी का कि ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुआ है बाय इंडियन कंपनीज एक्ट 1956. द कंपनी कैन फाइल अ सूट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी एंड बी सूट. सेकेंड थिंग, ये कंपनी क्योंकि 51% शेयर गवर्नमेंट के अंडर में है तो ये कंपनी अपना केस फाइल कर सकती है, कोर्ट में जो है केस फाइल कर सकती है और उसके लिए अब कंपनसेशन के लिए भी वो लायबल हो सकती है. नंबर थ्री, द कंपनी कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन एक्वायर प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम. थर्डली, ये कंपनी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है प्लस अपने नेम से प्रॉपर्टी को भी एक्वायर कर सकती है. मीन्स दिस कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी. आपने पढ़ा था कंपनी के बारे में, ये आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी. इट मीन्स ये अपने नेम से रन करती है मार्केट में एंड बाय इट्स ओन नेम इट कैन परचेज शेयर फ्रॉम द मार्केट.
Then the management of the company is regulated by the provision of the Companies Act like any other public company. दूसरी चीज़ मैनेजमेंट जो है इसका वो प्रोविज़न ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट के थ्रू जो है रेगुलेट होता है, जैसे हम और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में रेगुलेट करते हैं. Now see the fifth point. The employee of the company are appointed according to their own rules and regulations as contained in memorandum and article of association. Then government company में जो employees appointed होते हैं, it is as per the rules and regulation of that government company, and it is mentioned in memorandum of association and article of association. The appointment of employees are based on rules and regulations of that company, and that rules and regulations are mentioned in memorandum of association and article of association. These companies are exempted from the accounting and audit rule and procedures. ये companies accounting and audit और annual report present करना इन companies को जो है ये companies पार्लियामेंट में अपने एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट कर रही नहीं कर रही, इससे ये एग्जेम्प्टेड होती हैं. बिकॉज गवर्नमेंट कंपनी है, ये 51% शेयर गवर्नमेंट का होल्ड कर रहा है, डिसीजंस गवर्नमेंट ले रही है, इसीलिए इस कंपनी को अपना बजट में कंपनी को शो करने की ज़रूरत नहीं है. थर्डली जो है कंपनी जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस और प्रोविजन जो है उसको नहीं शो करती है पार्लियामेंट में, ये अवॉइड करती है, एग्जेम्प्टेड है. इनके लिए कंपल्सरली नहीं है गवर्नमेंट कंपनी के लिए कि दे शो देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस और बजट और दे विल पब्लिश देयर पेपर्स इन द मार्केट. Now see merits of government company. The main advantages of government company are: number one, a government company can be established by fulfilling the requirement of Indian Companies Act. A separate act in the parliament is not required. गवर्नमेंट कंपनी आपका इंडियन कंपनी एक्ट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके बन जाती है, इसके लिए पार्लियामेंट में सेपरेट लेजिस्लेचर या एक्ट को पास कराने की ज़रूरत नहीं होती है. नंबर टू, इट हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के अलावा ये कंपनी जो है अपने नेम से मार्केट में रन कर रही है, इट हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी. नंबर थ्री, इट एंजॉय ऑटोनॉमी इन ऑल मैनेजमेंट डिसीजन एंड टेक्स एक्शन अकॉर्डिंग टू बिजनेस प्रोड्यूस. ये कंपनी जो है फ्री होती है सारे डिसीजंस लेने के लिए और एज़ पर द डिसीजन और एज़ पर द बिजनेस प्रोड्यूस ये जो है अपने वो लेती सेपरेटली है. ये इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड दैट पार्लियामेंट में इसके डिसीजंस पास हो. ये लीगल एंटिटी है, गवर्नमेंट के थ्रू गवर्नमेंट से सेपरेट है ये. थर्डली इसके पास ऑटोनॉमी है, फ्री है मैनेजमेंट डिसीजंस लेने के लिए. These companies, by providing goods and services at a reasonable price, are available to control the market and curb unhealthy these companies, by providing goods and services at a reasonable price, are able to control the market and curb unhealthy business position. ये कंपनी जो है अपने गुड्स को मार्केट में अवेलेबल कराती है, रीजनेबल प्राइस पे देती है. बिकॉज ये गवर्नमेंट कंपनी है तो इसका सर्विस मोटिव, उसका मेन एम क्या है, सर्विस मोटिव है. तो इट इज़ प्रोवाइडिंग गुड्स एट रीजनेबल प्राइस इन द मार्केट, और जो अनहेल्दी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं उसको ये कंट्रोल करती है. नाउ सी, जिसकी मेरिट्स हैं उसके लिमिटेशन ज़रूर होते हैं. सी द लिमिटेशंस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. Since the government is the only shareholder in some of the companies, the provisions of the Companies Act does not have much relevance. कुछ कंपनीज़ में पूरा का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का है, तो इंडियन कंपनीज एक्ट का प्रोविज़न यहाँ फॉलो नहीं होता है. वॉट एवर रूल्स एंड रेगुलेशंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट वो फॉलो होता है इन दीज कंपनीज. नंबर टू, इट इवेट्स और अवॉइड्स constitutional responsibility which a company financed by the government should have. It is not answerable directly to the parliament. Secondly, ये कंपनी सारे डिसीजंस एज पर द एक्ट लेती है, तो इसमें जो है आपका ये इसकी मतलब एक तरीके से इसकी ऑटोनॉमी पेपर पर ही है सिर्फ. इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, पर्सनल प्रॉपर्टी मिनिस्टर्स की जो है वो ट्रीट हो जाती है इसमें फॉर मीटिंग द लाइबिलिटीज़. तो ये कंपनीज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से होती है, बस ये शो करते हैं ऑन पेपर कि इट इज़ फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल कंट्रोल. Number three, the government being the sole holder, the management and administration rest in government company. रजिस्टर्ड लाइक अदर कंपनी इज़ डिफीटेड. क्योंकि गवर्नमेंट इसका मेन होल्डर है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट सारे डिसीजंस लेता है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराने की भी ज़रूरत नहीं होती है. तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन गवर्नमेंट कंपनी इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ही अपॉइंट करी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को. दीज डायरेक्टर्स ऑलवेज ट्राई टू प्लीज़ द गवर्नमेंट. और ये डायरेक्टर क्योंकि गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा है, तो ये हमेशा चाहते हैं कि गवर्नमेंट को प्लीज़ करते रहें, गवर्नमेंट के फेवर में रहें, और ना कि एफिशिएंसी. दे आर नॉट प्रोवाइडिंग एन एफिशिएंसी टू द गवर्नमेंट कंपनी. ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ये अपनी एफिशिएंसी को कंपनीज़ में शो ना कर ये ऑल द टाइम दे आर बिजी इन
buttering the government so that they can be there and they have their post will be secure in these companies. पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट होते हैं एम्प्लॉयज़, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट को प्लीज़ करने में लगते हैं, वो अपनी एफिशिएंसी को कंपनी के डेवलपमेंट में नहीं लगाते. These are the major limitations of government company. Now see the next topic, that is changing role of public sector. Since 1991, there is a drastic change in the role of public sector. पब्लिक सेक्टर ने अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करा है 1991 की पॉलिसीज़ के बाद. कई सारे रिफॉर्म्स आ गए. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, NEP भी बोलते हैं इसको. ये आपके 1991 में स्टार्ट हुई थी, जिससे कई सारे चेंजेस आए थे गवर्नमेंट सेक्टर के रोल में. फॉलोइंग पॉइंट हाईलाइटेड द चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. नंबर 1, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज़ ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू कर दिया है. दे हैव देयर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर टू रन द कंपनीज. नंबर 2, रीजनल बैलेंसेस मतलब जो आपके जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू नहीं चल पा रही हैं, उसको उन्होंने बंद कर दिया. सेकेंडली, जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट्स होता है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करिए, तो रीजनल बैलेंसेस से उसको कंट्रोल कर रहा है. नंबर 3, चेक ओवर कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर. देन दे आर चेकिंग द इकोनॉमिक पावर कि कितना % शेयर है गवर्नमेंट के पास और किस तरीके से गवर्नमेंट इम्प्रूव कर सकती है इन दीज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज. दे आर डूइंग दिस. Then import substitution. The government trade and economic policy which advocate replacing foreign import with domestic production. Thirdly, before 1991 we are depending on outsiders, on multinational companies, on outsiders to import the outside country to import the goods to in our country. But 1991 के बाद जो है गवर्नमेंट कंपनी का रोल चेंज हो गया. उन्होंने इंस्टीड ऑफ इम्पोर्टिंग गुड्स फ्रॉम आउटसाइड कंट्री दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग ऑल दीज गुड्स इन देयर ओन कंट्री. उन्होंने अपनी कंट्री में उसको बनाना शुरू कर दिया है. इट मीन्स दे स्टार्टेड सब्सटीट्यूटिंग इम्पोर्ट. फॉर एग्जाम्पल, रिप्लेसमेंट ऑफ सम एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल इम्पोर्ट टू इनकरेज लोकल प्रोडक्शन फॉर लोकल कंजप्शन. तो उन्होंने जो इंडस्ट्रियल इम्पोर्ट करते थे आउटसाइड कंट्री से, कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को भी इम्पोर्ट कराते थे, उसको उन्होंने सब्सटीट्यूट करा, वो वहाँ से इम्पोर्ट कराना बंद कर दिया और लोकल प्रोडक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया, क्योंकि लोकल कंजप्शन है तो लोकल प्रोडक्शन भी ईजीली हो सकता है. इट मीन्स इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशंस आर देयर. जो हम बाहर की कंट्री से मेजर इम्पोर्ट करते थे, नाउ वी आर प्रोड्यूसिंग ऑल दीज गुड्स इन आवर ओन कंट्री. Now see the fifth point, government policy towards the public sector since 1991. See, there are some government policies towards the public sector since 1991. Number 1, reduction in the number of industries reserved for the public sector from 17 to 8 and then to 3%. सबसे पहले क्या था, बिफोर 1991 पब्लिक सेक्टर का ज़्यादा होल्ड था, प्राइवेट सेक्टर्स को एंट्री बंद थी. देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट सेक्टर टू रन इन द मार्केट. 70% का शेयर जो था गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर होल्ड कर रही थी और बाद तो वो रिड्यूस होकर के 8% आया. 8% के बाद वो 3% रह गए, क्योंकि गवर्नमेंट किन किन चीज़ों में पैसा लगाएगी. इससे बेटर प्राइवेट सेक्टर जो मार्केट में आ रहे थे, दे आर वर्किंग मोर एफिशिएंटली देन द पब्लिक सेक्टर. Number 2, in 2001 only 3 industries were reserved for the public sector. These are atomic energy, arms and rail transport. उसके बाद जो है 2001 में मेनली 3 इंडस्ट्रीज़ ही गवर्नमेंट सेक्टर्स में रहेगी, दैट इज़ एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड आर्मामेंट्स एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट. इनका होल सोल जो प्रोडक्शन था, ये जो था वो गवर्नमेंट के अंडर में था. बाकी सब चीज़ें उन्होंने प्राइवेट सेक्टर्स को दे दी थी फॉर प्रोडक्शन. Number 3, this meant that the private sector could enter all areas except the 3 and the public sector would have to compete with them. इसका मतलब ये था कि प्राइवेट सेक्टर बाकी सारे मार्केट एरियाज़ में एंटर कर सकता है, बस इन 3 एरियाज़ का प्रोडक्शन के अलावा बाकी सारा प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर्स के हैंड में आ गया था. दे कैन फ्रीली प्रोड्यूस द गुड्स एंड देन कैन सेल आउट इन द मार्केट, बट ओनली द थिंग्स शुड बी लीगल इन द आइज ऑफ लॉस. नाउ सी नंबर बी, दिस इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर ऑफ अ सेलेक्ट सेट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज. दिस इन्वेस्टमेंट का मतलब अपना इन्वेस्टमेंट कम कर दिया गवर्नमेंट ने, सो दैट दे कैन गिव मोर अटेंशन टू द
country. Disinvestment refers to sale of equity shares of public sector and unit to private sector. Disinvestment का मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट ने अपने शेयर्स को प्राइवेट सेक्टर और को सेल आउट करना शुरू कर दिया. द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू विदड्रॉ इट्स होल्डिंग फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड इंकरेज मोर पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर. गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड करा है कि अपने आप को विड्रॉल कर लें फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेशन को ज़्यादा इंकरेज करा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर रही थी. दे आर एबल टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर देन गवर्नमेंट देन पब्लिक सेक्टर. तो इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट इट विल इम्प्रूव मैनेजरियल एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. और ये क्यों करा था प्राइवेटाइजेशन? ताकि जो गवर्नमेंट है वो अपने मेजर थिंग्स पे ध्यान देना शुरू कर दे और कंट्री का इम्प्रूवमेंट होता है. Now see the C point. Policy regarding SIC unit to be the same as that for the private sector. Thirdly, जो भी SIC unit वो यूनिट होती हैं जो बिल्कुल बंद होने की कगार पे होती हैं, जहाँ पे लगातार लॉसेस हो रहे होते हैं, जिसको तो वो सब चीज़ें किसको हैंड ओवर कर दी थी? BIFR को, दैट इज़ बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकन्स्ट्रक्शन. बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकन्स्ट्रक्शन इन SIC यूनिट्स को चेक करता था, और अगर उन्हें ऐसा लगता था कि इसमें कहीं कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता तो वो उसको बंद भी करा रहा था. और कहीं पे भी स्कोप था कि SIC यूनिट रिवाइव कर सकती हैं और इनका जो है कन्वर्ट हो सकती है इनटू हेल्दी यूनिट, तो दे आर वर्किंग फॉर दैट ऑल्सो. तो इट मीन्स क्या हो गया था कि ऑल पब्लिक सेक्टर अंडर रेफर टू द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंस कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर में चली गई थी. वो डिसाइड करते थे कि वेदर SIC यूनिट को बंद करना है या क्लोज करना है या उसको रिकन्स्ट्रक्ट करना है, रीस्ट्रक्चर करना है. D. Memorandum of Undertaking. Memorandum of Undertaking means improvement of performance through a MOU system by which management are to be granted greater autonomy but held accountable for specific results. MOU is Memorandum of Association. Under MOU the public sector is given greater autonomy. MOU के थ्रू मतलब Memorandum of Undertaking के थ्रू पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा ऑटोनॉमी मिल गई थी. उन्हें टारगेट्स दिया जाता था, वो टारगेट उसके लिए उनको ग्रांट्स मिलते थे और उनको वो टारगेट टाइमली कंप्लीट करना होता था. अननेसेसरी इंटरफेरेंस तो था इस MOU का, लेकिन फिर भी उसके थ्रू जो हमारी कंट्री में एफिशिएंसी लेवल था वो बढ़ गया. ठीक है. अंडर दिस सिस्टम पब्लिक सेक्टर यूनिट वर गिवन क्लियर टारगेट एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी फॉर अचीविंग दोज टारगेट. पब्लिक सेक्टर यूनिट को क्लियर टारगेट दे दिया गया था और उनको ऑपरेशनल ऑटोनॉमी था कि उन्हें टारगेट को अचीव करना है. दैट वॉज मैंशन इन मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग. ठीक है बेटा, तो इज़ इट क्लियर? तो प्राइवेट 1991 की पॉलिसी के बाद इसको बोलते थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. यू हैव रेड इन इकोनॉमिक्स ऑल्सो. इसके बाद जो था देयर वर मेजर रिफॉर्म्स इन पब्लिक सेक्टर. रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर ने सिर्फ थ्री चीज़ों पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, बाकी सारी चीज़ों का उन्होंने प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट कर दिया था. दे स्टार्टेड सेलिंग देयर शेयर टू प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर रहा था और ये सब कुछ करने से गवर्नमेंट कैन सी मोर टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री. पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट का जो मेजर मनी थी वो इन पब्लिक सेक्टर्स को रन करने में निकल जाती थी और वो भी कंप्लीट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कंट्री हमारी बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो रहा था. तो ये पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन करने का मेन एम यही था, सो दैट प्राइवेट सेक्टर कैन इन्वेस्ट देयर मनी इन दिस, एंड जो है पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट जो है फ्रीली होकर के कंट्रोल कर सकते हैं इन द इकोनॉमी ऑफ द पब्लिक. Is it clear beta? I hope you all have understand. In my Zoom class I will explain you all these topics. Hope you all have understand. Read out the things, make notes timely. 13 lecture complete हो गए बेटा. Third chapter is going on. Complete your notes timely, complete your copy timely, do assignments and post it on your school, on your class email ID. Thank you beta. Have a nice day. Have a glorious day.